Good morning. I welcome all of you again in this session of physics class. In last class we have learned about the new Cartesian sign convention which is used in mirror or lenses. In this session we will use that sign convention to establish a relationship between radius of curvature and focal length of the mirror. We will also use sign convention to establish a relationship between image distance, object distance and focal length of the mirror, which is known as mirror formula. Since derivation of mirror formula is not required, it is not in syllabus, but simply I will give the derivation in PDF form and explain all these things. So now let us start relation between F and R. Suppose this is a M and B a concave mirror. This is M and is concave mirror whose P is pole, F is focus and C is center of curvature. Let us consider a incident ray OA which is parallel to principal axis. This incident ray strikes the mirror at point A. After reflection, it passes through focus of the mirror. Since CA is radius of curvature, CP is also radius of curvature, means as we have already discussed that any line which joins center of curvature and the point which lies on surface of the mirror is known as radius of curvature. So here point A is on surface of the mirror, so line joining the point A and C is radius of curvature. And we have also learned in mathematics section that radius drawn to any point on the circle is perpendicular to that point. देखिए ये एक नहीं, यदि हम इसको पूरी तरह से खींचेंगे, इस तरह से इसको पूरी तरह से खींचेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा और ये क्या है, एक रेडियस है. इस पॉइंट पर जो रेडियस होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा. क्या होगा, नॉर्मल होगा. सो हियर CA is normal at point A and OA is incident ray. So angle OAC is angle of incidence and angle CAF is angle of reflection. So here let incident ray strikes the mirror at point A. After reflection, this incident ray OA passes through focus of the mirror, because from the special rays we know that when any ray is made incident on the mirror which is parallel to principal axis, then after reflection it will pass through the focus of the mirror. यदि कोई इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो मिरर पर स्ट्राइक करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा. और यहाँ पर CA क्या है, पॉइंट A पर नॉर्मल है. क्यों, क्योंकि किसी भी सर्कल पर जो रेडियस, किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो उस पॉइंट पर नॉर्मल होता है. सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप यदि रेडियस ड्रॉ कीजिएगा तो वो रेडियस उस पॉइंट पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है. इसीलिए यहाँ पर CA जो है पॉइंट A पर क्या है, नॉर्मल है. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. दिस इज एंगल R. देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I जो है किसके बराबर होगा, एंगल R के बराबर होगा. सो here from figure CA is normal to point A because radius is always normal to point on circle. Again from figure PC is equal to, PC क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन साइन कन्वेंशन कहता है कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे. और देखिए ये जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो मेजर किया जाएगा वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा. इसीलिए ये वाला डिस्टेंस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा. सो हियर PC is equal to -R because all the distance which is measured in a opposite direction to the incident ray is known as, is taken as नेगेटिव, इसीलिए ये डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लिए.
P से F मीन्स पोल से फोकस की जो दूरी है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये भी चूंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। सो पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। साइन कन्वेंशन का यूज करके हम यहाँ पे निगेटिव साइन दिए हैं। अगला देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ओ ए सी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अगला है एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये और ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है। कैसा लाइन है, ये वाला लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल का पेयर बनता है। और हम आप जानते हैं कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पर एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, सॉरी यहाँ पे ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। नाउ फ्रॉम 1 and 2 इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा। देखिए इसमें भी ओ ए सी इसमें भी है और ये ओ ए सी इसमें भी है, ये दोनों कट जाएगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, मीन सी ए एफ इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ। क्लियर, मान लेते हैं ये इक्वेशन 3 है। अब देखिए इन ट्रायंगल सी एफ ए, इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, सी एफ ए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसलिए ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस ट्रायंगल में ये वाला दो एंगल यदि बराबर है तो इस दोनों के अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस एंगल का अपोजिट साइड ए एफ है और इस एंगल का अपोजिट साइड सी एफ है। सो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इसको मान लेते हैं 4। यदि मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे यहां से इंसिडेंट हुआ होता यहां से, तो ये जो पॉइंट ए है वो यहाँ पे रहता। यदि हम इस इंसिडेंट रे को यहां से इंसिडेंट करवाते तो ये ए पी के और नजदीक आ जाता। इसीलिए कहते हैं कि यदि पॉइंट ए, इफ पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, यदि ये पॉइंट ए पॉइंट पी के बहुत क्लोज हो, ये किस केस में ऐसा हो सकता है, जब मिरर का एपेचर क्या हो, छोटा हो। ये जो लेंथ है मिरर का यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ जब बहुत छोटा होगा उस केस में ये ए जो है वो किसके नजदीक आ जाएगा, पी के नजदीक आ जाएगा। जब ए पी के नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा, सी एफ और सॉरी ए एफ और पी एफ दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस भी लगभग पी एफ के बराबर में हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पे आ गया ए वाला पॉइंट, यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाते, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ लगभग बराबर होता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए एफ इज अप्रोक्सीमेटली, ये साइन है अप्रोक्सीमेट का, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी। सो फ्रॉम फिर यदि हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा दोनों, तो सी एफ और एफ पी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो एफ सी इज इक्वल टू सी एफ। किसके बराबर होगा, एफ पी किसके बराबर है, हमने शुरू में ही मान रखा है कि पी एफ या एफ पी जो है माइनस एफ के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। किसके बराबर है, माइनस एफ के बराबर है। अब चलते हैं पी सी जो है, पी से सी का जो डिस्टेंस है इसको हम दो पार्ट में जोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटेन एज पी एफ प्लस एफ सी। सो पी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी एफ। पी सी का भी वैल्यू यहाँ से माइनस एफ लेंगे और एफ पी का भी वैल्यू यहाँ से माइनस एफ लेंगे, तो दोनों का वैल्यू माइनस एफ प्लस माइनस एफ, माइनस एफ माइनस 2f हो जाएगा। सो माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2f, माइनस माइनस कट गया, आर इज इक्वल टू 2f। हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। Thus we see that radius of curvature is equal to twice the focal length of the mirror। ये रहा डेरिवेशन किसके किसके बीच का, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का। अब है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मिरर फॉर्मूला।
मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v is equal to image distance u is equal to object distance and f is equal to focal लेंथ ऑफ मिरर। ये मिरर फॉर्मूला है और इसकी डेरिवेशन हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम आपको पीडीएफ में इसका डेरिवेशन आपको भेज देंगे। आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको याद रखना होगा कि इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको ट्रायंगल का सिमिलरिटीज का जो प्रॉपर्टीज है उसको ठीक से समझना होगा। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल, हम उस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसको डिराइव करने के लिए। मैग्निफिकेशन के साथ जो रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का, उसको भी प्रूफ करने के लिए हम वही सिमिलर ट्रायंगल का ही यूज करते हैं। तो हम आपको उसका जो पीडीएफ फाइल है डेरिवेशंस आपको हम भेज देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन में हमें इतना ही पढ़ना था। धन्यवाद।